Hi students, good morning. Myself Dr. Sunil Vats again here to discuss another topic, and the topic for today is not so common, but the topic is very important for the beginners of Python users. Here today we will discuss about the topic type of error or kind of error which are normally produced during the programming by the user or system. What type of errors may be there in the program and how we can tackle with such type of problems. Here as usual we will discuss the topic in computer science 083, that is session for 2020-2021, and the topic for today is error in Python. Error means a kind of mistakes which are occurred unknowingly by the user during their programming in Python. First of all, what is an error? Errors are the kind of obstacles which are faced by the user during their programming. As now we come here with a topic Python error type. First of all, we will discuss about the errors which we will discuss in the topic today here. Python error. So just I'm not, my pen is not working here. Yes, now Python error type. The most common reason of an error in Python programming is known as certain statement is not in accordance with the prescribed use. Means हमारे सिस्टम के अंदर यदि कोई एरर आई है, हमारे प्रोग्रामिंग के दौरान यदि आपकी प्रोग्राम में कोई एरर आई है, इसका मतलब है कि जो रूल हमारे हैं प्रोग्रामिंग के उनको हमने प्रॉपर या तो फॉलो नहीं किया है या कहीं सिंटैक्स लिखने में कोई ना कोई गलती हमारी कर दी है। वैसे यदि हम बेसिकली देखें तो हम एरर को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी डिजाइन टाइम एरर, एक होती है हमारी रन टाइम एरर, एक होती है हमारी सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर अभी हमारी यहाँ पे आ सकती है। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि आप मान लो स्टेटमेंट लिख रहे थे, सपोज यू वांट टू प्रिंट ए स्टेटमेंट here and you have write down the P in capital letter instead of small, then an error will be produced there. An error will be produced there. Such type of error is known as syntax error. Syntax error. Sometimes a error occurred when we are applying any formula or any method on the logic. Suppose I have write down C equal to A into C. Mathematics point of view say it is correct, meaning A into C. But when we discuss from the programming point of view, this is not fair. Actually here I will write down A into C instead of A into C. This type of error is known as logical error. इसके बाद हमारा रन टाइम एरर. रन टाइम एरर आर काइंड ऑफ एरर वेयर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन बट द रिजल्ट इज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूजर. यानी कि आपका प्रोग्राम तो सक्सेसफुली रन हो गया बट जो हमारा आउटपुट आना था वो आउटपुट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है. इस तरीके की जो एरर होती है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर. ये जो दोनों है हमारी सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर, ये दोनों हमारी वो एरर है जो डिजाइन टाइम में आएगी, जबकि जो आपका रन टाइम एरर है वो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद आएगी. चलिए लेट्स मूव नाउ वी विल डिस्कस द पॉइंट्स. The point first one we have syntax error हो गया हमारा.
अब पाइथन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे इन्होंने ये सिंटेक्स लिख दिया प्रिंट हेलो, व्हेन वी आर वर्किंग इन द पाइथन वर्जन अबव 3.0, ये हमारा वर्जन है किसका, वर्जन ऑफ पाइथन। व्हेन वी आर वर्किंग अबव द वर्जन ऑफ 3.0 at that time, if we want to get the print on the screen, then we will just write down print, then get the parenthesis in both sides. If we will write like this one, then the syntax is right, सही होगा, otherwise it will produce a error, और एरर में मैसेज क्या आएगा, मैसेज आएगा syntax error, missing parenthesis in call to print. Did you mean print hello? भी क्या आप ये प्रिंट करना चाहते थे? Yes, we want. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अभी पैरेंथेसिस थी वो आपकी मिस हो गई है, और पैरेंथेसिस मिस होने की वजह से आपके प्रोग्राम के अंदर एक एरर आई है विच इज नोन एज सिंटैक्स एरर. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड, नो वी विल मूव वन बाय वन. प्रिंट क्या है हमारा, प्रिंट हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है विच रिक्वायर पैरेंथेसिस. अब इस स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने इसको पैरेंथेसिस को वायलेट किया, और वायलेट होने की वजह से वहां पे एरर आई विच इज नोन एज सिंटैक्स एरर. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम. दो ए प्रोग्राम रिजल्ट एन एरर आफ्टर इट इज रन इवन इफ डज नॉट हैव एनी सिंटैक्स एरर. कई बार क्या होता है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही था, उसमें कोई हमारी सिंटैक्स की एरर नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर आपको प्रोड्यूस कर देता है. आपको एरर वो जो है वो दिखा देता है, प्रोड्यूस कर देता है. एट दैट टाइम क्या होता है, सच एन एरर इज ए रन टाइम एरर. ऑलरेडी जैसे मैंने बताया आपको, और जो ये रन टाइम एरर होती है इनको हम बोलते हैं एक्सेप्शन. क्या है, एक्सेप्शन. व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर, when we divide any number by 0, at that time error will be there. Such type of error is called exception. A number of built-in functions are defined in the Python library. अब उनको सभी जो हमारे फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस, उनको हम डिस्कस करेंगे, और किस फंक्शन में क्या गलती हो सकती है, क्या एरर वहां पे हो सकती है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. वी विल डिस्कस हियर वन बाय वन. गो. यस, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन इंडेक्स एरर. इंडेक्स एरर क्या होती है, व्हेन वी डिजाइन एनी लिस्ट इन ए प्रोग्रामिंग, लाइक आई हैव ए लिस्ट 1 इक्वल टू ए B, C, D. This is the list. As we know that the element in the list can be determined with its index value, and index value start from 0. Here 0, 1, 2, 3. If I want to get like this, print list 4. देखिए अब यहां पे मेरे पास जो इंडेक्स वैल्यू है वो कहां तक की थी, 3 तक की थी, लेकिन मैंने जो प्रिंट किया 4 किया. 4 इंडेक्स वैल्यू मेरी प्रोग्राम में नहीं थी, तो क्या होगा, वहां पे एक एरर आ जाएगी, और उस एरर को हम बोलेंगे इंडेक्स एरर. क्या बोलेंगे, इंडेक्स एरर. मींस इंडेक्स एरर क्या होती है, इंडेक्स एरर इज थ्रोन व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस एन आइटम एट एन इनवैलिड इंडेक्स. अब यहाँ पे इंडेक्स मेरे 0 से 3 तक थे, मैंने वैल्यू प्रिंट की 4 की, तो यहां जो एरर आएगी दिस इज नोन एज इंडेक्स एरर. नेक्स्ट वी हैव import error. As you know that in Python we have the requirement to import many library file to complete the operation
of a program. During the programming, when we import any library, at that time we miss any spelling or any case, it may be upper or lower, because we know that Python is a kind of language which is case sensitive. Here I have a header file, a library file math, and I want to import a function cube from the header file, from the library file math, when a specified function cannot be found. अब क्यूब फंक्शन क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं होगा इंपोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे जो मैंने इंपोर्ट किया था ये एरर आ जाएगी. एरर क्या दिखाएगी? एरर मेरे को दिखाएगी ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल पाई सेल का नंबर 16 लाइन 1 के अंदर क्या लिया मैंने? जो मैंने मॉड्यूल लिया है. क्या मॉड्यूल लिया मैंने? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट क्यूब, दिस वन. और उसमें क्या है? उसमें हमारी इंपोर्ट एरर है. क्या एरर है? कि कैन नॉट इंपोर्ट नेम क्यूब, कि जो हमारा फंक्शन आपने लिया है क्यूब वो हमारी फाइल में मैथ में नहीं है. इस वजह से वहां पे हमारी एरर आई है. नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर. मॉड्यूल मीन्स a piece of information. Module not found error is thrown when a module could not be found. Here in this example we have import not a module. ये मैंने एक लाइब्रेरी फाइल को लिखा है, लाइब्रेरी फाइल को मैंने मेंशन किया है, और मैं चाहता हूं कि मैंने इसको अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है. आई वांट टू कॉल द फंक्शंस ऑफ ए लाइब्रेरी फाइल विच इज नेम्ड एज नॉट ए मॉड्यूल. तो यहां पे क्योंकि ये लाइब्रेरी फाइल हमारे प्रोग्राम में है ही नहीं, यदि नहीं है तो वहां पे एक एरर आएगी, और उस एरर को हम बोलेंगे मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर. मीन्स नो मॉड्यूल नेम्ड नॉट ए मॉड्यूल. और वही कह रहा है कि ये जो हमारा पाइथन सेल का लाइन नंबर 1 है उसमें मॉड्यूल मैंने डिफाइन किया था. ठीक है भाई, हमने यही डिफाइन किया था, वो वहां पे नहीं मिला तो एरर आ जाएगी. इसके बाद हमारी होती है की एरर इज थ्रोन व्हेन ए की इज नॉट फाउंड. आप डिक्शनरी डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, यू विल डिफाइन डिक्शनरी, और हमें पता है कि ऑलवेज ए डिक्शनरी इज डिफाइंड within the curly braces and every dictionary must have a key and its value. अब यहां पे सपोज करो कि मैंने एक डिक्शनरी बनाई जो D1 थी, जिसमें मैंने 3 एलिमेंट एंटर किए. एक की 1 थी, इसके बाद की 2 है, एक की 3 है जिसकी वैल्यू A B B और C है. मैंने क्या किया, यहां पे मैंने D14 यानी कि जो D1 मेरी डिक्शनरी थी उसकी की वैल्यू जो 4 थी उसको मैंने एक्सेस किया, उसको मैंने कॉल किया. लेकिन जब मैंने कॉल किया और हमें पता है कि यहाँ पे की मेरे पास 1 है, 2 है या 3 है, बट 4 इज नॉट देयर. तो यहाँ पे 4 मेरी की नहीं थी, तो यहाँ पे मेरी एरर आ जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है कि D1 जो 4 है वो हमारी क्या है, की इज नॉट फाउंड इन द प्रोग्राम. सो it will generate a error. That error is known as key error. Next we have a stop iteration. Stop iteration का मतलब है in the iterative statement. Already we have completed this operation, iterative statement. क्योंकि ये एरर थी हमारी, ये इन प्रोग्राम से कंसर्न थी, इसलिए मैंने इसको सबसे बाद में उठाया है. तो इटरेटिव एरर आल्सो नोन एज लूपिंग स्टेटमेंट. अब यहां पे मैंने क्या किया, IT इक्वल टू ITR 1 2 3 और नेक्स्ट IT, इसको मैंने आगे मूव किया. नेक्स्ट मूव किया तो क्या हो गया, 1 आ गया. नेक्स्ट मूव किया तो 2 आ गया. नेक्स्ट मूव किया तो 3 आ गया. तीनों आ गए मेरे पास.
अब इसके बाद वैल्यू मेरे पास नहीं थी, आगे इटरेशन मेरा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने फिर भी लिख दिया नेक्स्ट इट, नेक्स्ट करो इसको, लेकिन आगे तो हमारे इसमें वैल्यू थी ही नहीं। अब वैल्यू नहीं थी तो क्या होगा, हमारा इटरेशन नहीं होगा, तो वहां पे एरर आपकी आ जाएगी। और एरर क्या आएगी, वो आएगी हमारी स्टॉप इटरेशन। जो हमारी एरर आती है ये आती है ड्यू टू द इटरेशन ऑपरेशन। आफ्टर दैट वी हैव टाइप एरर। टाइप एरर का मतलब है, यहां पे मैंने देखा भाई मैं कोई ऑपरेशन कर रहा हूं, व्हेन एन ऑपरेशन और फंक्शन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब भाई मेरे पास इंट का ऑब्जेक्ट है, या मेरे पास फ्लोट का ऑब्जेक्ट है, या मेरे पास स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, या मेरे पास लिस्ट ऑब्जेक्ट है, टपल है, डिक्शनरी है और सो मेनी। तो यहां पे मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे कर दिया 2 + 2। अब यहां पे इस साइड मैंने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया है और यहां पे मैंने इंटीजर ऑब्जेक्ट लिया है। अब जो हमारा प्लस यह कॉन्कैटिनेट होगा, कॉन्कैटिनेट कब होगा, इफ बोथ साइड आर स्ट्रिंग वैल्यूज। हमारा नंबर यदि होगा तो हम हमारा अरिथमेटिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, जिसकी वजह से हमारी एरर यहाँ पे आएगी, और ये जो एरर हमारी प्रोड्यूस होगी दैट एरर इज नोन एज टाइप एरर। अब ये कह रहा है कि मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट। भाई यहाँ पे ये हमारा इंट जो आपने दिया है ये इंट न होके ये स्ट्रिंग होना चाहिए था। एट द टाइम वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन। नेक्स्ट वी हैव वैल्यू एरर। और वैल्यू एरर कब आती है, वैल्यू एरर इज थ्रोन व्हेन ए फंक्शंस आर्गुमेंट, व्हेन ए फंक्शंस आर्गुमेंट। हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था आपको कि भाई मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, और यहां पे ले लिया मैंने रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर मैंने 2 पैरामीटर दे दिए, एक ए दे दिया, एक बी दे दिया। अब 2 पैरामीटर मेरे पास है, और मैं जब इसको आर्गुमेंट पास कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट आई हैव पास्ड 3 वैल्यू, तो वहां पे हमारी एरर आएगी। तो वो एरर जो होगी दैट इज नोन एज वैल्यू एरर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू हमारी दी है इंट, इसका जो टाइप दिया है ये जो दिया है इंट, बट जो मैं इसके लिए डिफाइन कर रहा हूं वो मेरा है स्ट्रिंग। अब क्योंकि हमारा आर्गुमेंट इंटीजर टाइप था, तो वी मस्ट पास द आर्गुमेंट एज इंट। इफ वी एंटर द आर्गुमेंट एज इंटीजर देन नो एरर विल बी देयर, बट वी हैव एंटर स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई इट विल प्रोड्यूस एन एरर। और ये जो एरर होगी इसको बोलेंगे हम वैल्यू एरर। क्या होगी, वैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। इसके बाद हमारा है जीरो डिवीजन एरर। अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताई थी, भाई आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया, तो जब 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। इस वजह से वहां पे हमारी एरर जो है वो आ जाएगी, और जो एरर आएगी सच टाइप ऑफ एरर इज नोन एज नॉन जीरो वैल्यू। अब इसमें क्या है, सॉरी इससे पहले हमारे पास ये तो होगी हमारी, ये वाली रहेगी थी हमारी, लेकिन बता देता हूं पहले, जैसे x = 100/0, और जब x/100 मैंने किया तो यहां पे हमारा जो 0 है, 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाई 0 मैंने यहां पे किया है, इस वजह से यहां पे जो एरर आएगी, क्योंकि व्हेन द सेकंड ऑपरेटर इन द डिवीजन इज 0। इससे ऊपर में रह गया था एक नेम एरर। नेम एरर क्या है, हमारी नेम एरर हमारी थ्रोन होती है जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट उसको प्रोग्राम के वेरिएबल को नहीं मिलता। जैसे मैंने यहाँ पे एज लिया, जब एज मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैंने आपका डिफाइन नहीं किया था। एज को जब मैंने एज डिफाइन नहीं किया है, तो जब तक हम किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते, टिल देन वी कांट यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। मीन्स to define to execute a program we must have a variable name in the program. Next we have keyboard interrupt. Keyboard interrupt is thrown when the user hit the interrupt key, normally Control C। और Control C क्या करती है, Control C हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को बंद कर देती है। कब यूज करते हैं इसको, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि भाई व्हेन वी आर वर्किंग इन लूप एंड द प्रोग्राम इज कंटिन्यू
विदाउट फाइंडिंग द फॉल्स स्टेटमेंट। भाई हमारा प्रोग्राम में फॉल्स स्टेटमेंट नहीं आई, और फॉल्स स्टेटमेंट न आने की वजह से प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू चल रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। एट दैट टाइम वी यूज Ctrl+C, और जो ये इस तरह की एरर होती है दैट इज नोन एज कीबोर्ड इंटरप्ट। इसके बाद वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ एरर्स विच वी कैन हैव इन ए फंक्शन बिल्ट इन एक्सेप्शंस पाइथन। इसमें जैसे हमारी असर्शन एरर है, यहाँ पे लिखा है मैंने, रेज्ड व्हेन द assert स्टेटमेंट फेल्स। एट्रीब्यूट एरर, रेज्ड ऑन द एट्रीब्यूट असाइनमेंट और रेफरेंस फील्ड। EOF मीन्स एंड ऑफ फाइल एरर, फ्लोटिंग पॉइंट एरर, generator exit, import exit, means so many errors are there, but that is not so important for the class 12th, so I have only defined it in a short way. So you have to only go through all these type of exceptions or errors. That is all for the today. Thank you. Have a good day. Thank you.